The इम्पॉर्टेंट थिंग इज अभी विजय सर मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग कैसे करूँ। तो देखिए, एंड्रॉयड में जी स्वीट ने शायद ये फैसिलिटी दी है या नहीं दी है, मुझे आइडिया नहीं है। बट रिकॉर्डिंग का फीचर उनके अकाउंट पे इनेबल्ड है, तो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उनको ये बोले उनकी क्लास रूम में यानी क्लास वर्क में कुछ भी, तो पूरा क्लास वर्क खाली पड़ा हुआ है। तो इफ़ यू उनसे ये और बोल दीजिए कि अगर वो कोई मटेरियल देना चाहें तो मटेरियल क्लास वर्क के अंदर आता है और वहीं पे सारे ऑप्शंस हैं। ये जो स्ट्रीम में जाकर के करना शुरू कर देते हैं वो गलत तरीका है। और दूसरी चीज़ ये है, बीइंग ए टीचर इनके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए, और अगर लैपटॉप नहीं है तो फिर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकती। और एंड्रॉयड पर रिकॉर्डिंग का तरीका ये है क्योंकि उसमें मोबाइल में रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी होती है, तो tell him to use that. Otherwise, he'll not be able to record the meeting or record the lecture, whatever he's giving. तो मैंने अभी मॉर्निंग में देखा था कि when he was taking class and he was simply using the mobile and headset, so that way class cannot be done. और इस वजह से ये है कि भाई फिजिक्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो he should give some videos, and he should give those videos which are prepared by the sir. And I have seen the class of Karun sir, and the class was running quite good because he was taking the class on the board, and board पर उन्होंने पहले से बना के रखा हुआ था, और उसके बाद using the pointer he was explaining the chemistry. So कम से कम बीइंग टीचर हर समय कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहना चाहिए जो कि टीचर्स नहीं कर रहे हैं। ओके, एनीवे हम आते हैं वापस अपने काम पर। I am sharing the screen. So my screen is this. Okay, so this is the next method of string that says the count. Count means you are counting the occurrences of the word or the character within the string. So it has three parameters. Number one, substring which you want to search, and the index starting from, and index till end. So see here, count function has one compulsory and two optional parameters. Like कंपल्सरी कौन सा है जो आप सर्च कर रहे हैं, दैट इज सब स्ट्रिंग, दिस इज मैंडेटरी पैरामीटर क्योंकि इसको आपने काउंट करना है, सो ये आपको कंपल्सरी होगा। एंड ऑप्शनल पैरामीटर्स आर स्टार्ट एंड एंड, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स एंड ending index. So see here, this is example. If you want to search p in the string t, so p is the substring and t is the main string. In this string, we are going to count occurrences of p. Okay. Similarly, this is second format where we will discuss that this string is to be counted, and the occurrences of this string to be counted starting from index 1 till index 15. So this is the syntax of count, and you can apply this on a string. How to count the occurrences of any word or substring within the sentence or the big string. So see here, this is example. In the example, the first statement is
T is equal to input story. So I have given the boy was playing with the dog of the house. एंड उसके बाद हमने इनपुट कराया सब स्ट्रिंग दैट इज what to see. क्या आपको काउंट करना है? सो आई हैव गिवन हियर what to see D. I want to I wanted to count the occurrences of D. तो सी कैसे हमने इस प्रोग्राम किया है? Simply I have given that is the occurrences or count Cn is equal to T is the story the word which we have given, and T dot count and st, since you are going to count the substring in big string, that is T. Right. So over here, print st means substring which you are going to count the occurrences. So this is a string, and यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ जो मैनिपुलेटर यूज किया है दैट इज द एंड, मींस this substring is found how many times. So this is here Cn. So st found Cn times. Please hold, huh? Anybody without permission was trying to enter the class, so tell him to go out, because if he or she is entering the class with the school ID, he or she can enter, otherwise the person cannot enter the class. Now the occurrences of in this sentence, the boy was playing with the dog of the house. So there are three occurrences of the word the. So over here I have given the output like st. St is the found, and the next statement is how many times. This is the count, itne times. So over here you see the found three times. Clear? So we were searching the here, what to see में हमने दिया हुआ the, and the main string was the boy was playing with the dog of the house, and जो जिसकी occurrences हमें count करनी थी वो word है the. So जब हमने इसको लगाया cn is equal to t dot count st, तो इस जगह पर st जो है काउंट होकर के जितने बार भी जो occurrences हैं वो cn में जाकर के स्टोर हो जाएंगे. Now this is the output. Print the found how many times. This is the value of cn. So the is found three times, so it will print the output like this. Now थोड़ा सा चेक किया, थोड़ा सा चेंज किया, and evaluated the length of the substring and the main string. The main string is the boy was playing with the dog of the house. So ये sentence है, इसकी length हमने निकाली है. तो length निकालने के लिए we have applied L is equal to length of the string T, and see here what we did. Cn means count the occurrences. इसके अंदर मेन स्ट्रिंग के अंदर मेन स्ट्रिंग इज दिस, ये मेन स्ट्रिंग है. तो मान लीजिए लेंथ कितनी है आपकी, ये लेंथ हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, and 5, 44. So length of string is divided by 2, तो इसका मतलब है 22. So starting from 22. Just hold please. हेलो. सो कहाँ से हमें स्टार्ट करनी थी, ये देखिए कि मुझे स्टार्ट करनी थी 22 से. तो 22 से मतलब ये है कि लगभग इतना स्ट्रिंग तो आपका निकल गया. तो रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग इज दिस. सो फ्रॉम हेयर फ्लोर डिवीजन ऑफ एल एंड इट इज डिविजिबल बाय 2. सो जो लेंथ है उसको हमने 2 से डिवाइड करके देखा. तो ये जो लेंथ है इस जगह से स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस एंड इट 22nd इंडेक्स से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक स्ट्रिंग कितने बार रिपीट हुई है ये काउंट किया. तो यहाँ पर अगेन आउटपुट आता है एस टी पाउंड सी एन टाइम्स, बिकॉज सी एन कितने, यानी यहाँ से देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक सी एन कितने बार आया है. एस टी जो है आपका सब स्ट्रिंग जो है 2 बार आया है. सो यहाँ पर हमने कहा कि दी जो वर्ड है फाउंड 2 times in the second half of the string, because total length is 44. When you divide length by 2 it will give you 22. So floor division will also give you 22. So this is the output that the found 2 times in second half of the string. So entire output will be printed different lines. To see here, only these 2 lines will be printed in one line. The found 2 times and these 2 lines will be in separate lines. Okay, we have also discussed about find method. So in the find method, you might have observed that अगर मैम आप लेट आए हो. वाइस प्रिंसिपल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. जब क्लास लेनी थी तो रुक जाइए, 1 मिनट रुको. वेट बेटा. क्या हो गया? कनिया नेट आ रहा है? अरे कपिल, देख रहे नेट क्यों नहीं लग रहा? चेक करना. वाईफाई प्रॉब्लम क्या है? मोबाइल पर डालो. हाँ, मोबाइल यहाँ कहीं
हाँ सॉरी, बट यहाँ पर क्या होगा कि अगर फाइंड के अंदर ऐसा होता था कि अगर कोई भी स्ट्रिंग आप जो सर्च कर रहे हैं वो नहीं मिलती है तो वहाँ पर वो -1 रिटर्न करता है। आप जाकर के पीछे वाली फाइंड वाली स्लाइड रेफर करिए, तो आपको मैंने जो रिजल्ट वहाँ पर दिए हैं कई जगह पर -1 भी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि दैट स्ट्रिंग विच यू वांटेड टू सर्च, तो वो अगर वहाँ नहीं मिलती है देन इट गेव और रिटर्न -1। बट ओवर हियर इफ the index of the word which you are searching doesn't exist, then index will be not -1, rather it will return an exception, that is abnormal error, और जो टाइप एरर है वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। सो ओवर हियर बिल्कुल तरीका वही है, यू विल हैव टू use 3 parameters. One is substring. This is mandatory, but start and end, these two parts are optional. So start means you maybe counting like starting point is 0 and the ending is the length -1, and default value of length is the length of the string, and it is optional argument. दोनों ही ये आर्गुमेंट्स ऑप्शनल हैं, बट जिसकी आप इंडेक्स जानना चाहते हैं इट शुड बी देयर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए बताइए। सर आप लास्ट जो स्लाइड है सर, उसमें सर बैकग्राउंड में सर आपका फोन का रिंगटोन बज रहा था सर। सो क्या आप लेन के बाद से सर वो रिपीट कर सकते हैं? ओके मैं पहले तो इसको म्यूट पे डालूं, अगर आगे आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके कुछ नहीं था इसमें। यू वांटेड टू काउंट द occurrences of the sub word which is like I had given the sentence like the boy was playing with the dog of the house. So this is a sentence, and in this sentence I wanted to count the occurrences of the word the. ओके सर। So right. So this statement cn is equal to t dot count st means I am counting st. How many times does it occur? I don't know, because I have not included a starting index and ending index. So it will start from 0 and it will go till end. So whatever occurrences are there, it will be printed like this string, substring found how many times? N times in this sentence. ओके सर। Okay. Now here, length upon 2, whatever the length of the string is, 44 upon 2, 44. 22. So it will start from 22 and it will go till end. It will start from 22. So obviously this D will be left. ये छूट जाएगी because it will start counting from the next part or second half of the string. That is why the occurrences of the word the are 2, and this exists in second half of the string. Next, index. So see here, यहाँ पर मैंने कहा कि फाइंड के अंदर अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो इट विल रिटर्न -1, और इस जगह पर इफ इंडेक्स विद इंडेक्स, if value does not exist or processor does not find the value, it will return value error, right? So see here what I have done, t dot index b, b की इंडेक्स हमने निकालनी है, तो b की इंडेक्स कहाँ से निकालनी है? इंडेक्स will begin from 0 onwards. Index will begin from 0 onwards. So over here, see, this is index 0, this is index 1, 2, 3, and so on. So at index 1, B exists. So it will give you output 1.
Okay, now here print t dot index 3xy. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, and from 6. From index 6, 3xy starts. So it will give you index 6. Zab, इसकी इंडेक्स कहाँ पर है? So I am starting from index 3. So यहाँ से स्टार्ट करना है D से. तो 2, 4, this is Zap. So over here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 2, 0, 1, 2 यहाँ से. So the index of Zap will be 9. आपको स्टार्ट कहाँ से करनी है? इंडेक्स नंबर 3 से. तो इंडेक्स नंबर 3 इज 0, 1, 2, 3 यहाँ से स्टार्ट करनी है. और वो कहाँ पर जाकर के मिलेगी? इंडेक्स उसकी क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So index of Zap is 9, but it will begin from index number. It will start searching from index number 3. So exact index है, it will return. So exact index of Zap is 9, but it will start from D. ABC को छोड़ देगा और D से वो स्टार्ट करेगा. तो उसके बाद जो इंडेक्स उसकी एक्चुअल इंडेक्स होगी Zap की, वो होगी 9. So it will print 9 here. Clear? Now see another example. Find out the index of AB but start from index 5. So देखिए AB तो आपका यहाँ ऑलरेडी है. Since you will have to start finding the index from index number 5. So what is index number 5? 0, 1, 2, 3, 4 and 5. यहाँ से आपको सर्च करना है. तो देखिए अगला AB आपको कहाँ मिलता है? तो AB आपका ये मिलता है. तो आप यहाँ से काउंट करें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and this is 10. राइट. सो ये जो जितने भी वर्ड्स मैंने सर्च किए हैं सबकी इंडेक्स मुझे पता चल गई. लेकिन दिक्कत यहाँ पर आ रही है. व्हेन आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग 213, नाउ इट गिव्स वैल्यू एरर because we'll have to start from index number 6. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and after 6 there's no 213 string because 6 यहाँ पर स्टार्ट होता है. तो इस जगह के बाद से कोई भी 213 आपको यहाँ नहीं मिलेगा. और इस केस में क्या एरर देगा? this will be your value error. So any question from here? Okay. No, sir. Any other student? No error. No question. Fine. So यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ जो लिखा हुआ है ना इज लोअर एंड इज अपर, ये थोड़ा सा डिफरेंटली लिखा हुआ है बिकॉज लाइक एटलीस्ट वन लोअर केस एंड एटलीस्ट वन अपर केस. पहले हम इस पे आते हैं, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम इज लोअर एंड इज अपर पे जाएंगे. तो लेट अस सी. इज एलनम मीन्स क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है? अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये है कि इसके अंदर नंबर एज वेल एज द स्ट्रिंग दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है. मतलब अल्फाबेट एंड नंबर्स दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है. सो द चेक इफ टू चेक इफ स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली अल्फाबेट्स और डिजिट्स और नॉट, क्या ये इन दोनों में से कोई भी या दोनों या फिर नहीं. इसके लिए उस टाइम पर ट्रू आएगा अगर वो मिलता है तो.
अगर एस अल्फा न्यूमेरिक है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा. नाउ सी हियर इज स्पेस टू चेक इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली स्पेसेस और नॉट. क्या जिस स्ट्रिंग में आप चेक करना चाह रहे हैं उसके अंदर स्पेस है या नहीं, या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा. सिमिलरली इज अल्फा मींस अल्फाबेट ओनली, नॉट अल्फा न्यूमेरिक, यानी इसके साथ डिजिट नहीं होना चाहिए. So in this case, we must use is alpha, and when we use is digit means this would be the string, but the string would be of the digits. Means numbers will be enclosed in double quotes. So this is a string, but this string should be of the digits. Okay. Now is lower थोड़ा सा और is upper थोड़ा सा ऊपर वालों से डिफरेंट. बिकॉज इसके अंदर जो देखना है वो ये है टू चेक स्ट्रिंग कंटेन्स एटलीस्ट वन लोअर केस लेटर एंड नो अपर केस एट ऑल. मतलब स्टार्ट जो होगा वो आपका लोअर केस से स्टार्ट हो और उसके अलावा उसके अंदर कोई भी कैपिटल लेटर ना हो, नंबर्स ना हो. Only then it will give you true, otherwise it will give you false. Same with is upper to check if a string contains at least one uppercase letter and no lowercase at all. Any alphabet from A to Z. Same there in lowercase and same in is uppercase. So just see the example of this. मोबाइल चार्जर नहीं. यहाँ पर आपको थोड़ा सा हमने डिफरेंट करने की कोशिश की है. देन यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज मेथड्स. लाइक फर्स्ट आई हैव टेकन T1 as spaces, maybe there are 3 spaces, and T2 is another string. It is having 1 2 3 4. It's a number, digits, but it is a string. T3 is also a string, but it starts from the alphabets, and after alphabets there are some digits. So AB 1 2 3 is alphanumeric. So we'll apply these functions there. T4 ABC, simple string. Over here T5 is ABC 4 5 6. So this is again this string. Now we'll apply these methods on these strings. Now see here, T1 dot is space. T1 क्या स्पेस लेके चल रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रू होना चाहिए. तो see here, this is true. T5 ABC dot ABC space 4 5 6. Yes, there is a space, but it is not beginning with the space. That is why is space here in T5 is space will give you false, because the string ABC 4 5 6 must begin with the space. Only then T5 will turn to true. So over here T5 is equal to ABC then space ABC and 4 5 6 के बाद बीच में स्पेस है, बट ये स्पेस शुरू में नहीं है. इसकी वजह से ये आपको आउटपुट देगा false. Now see next example. T2 dot is digit. So T2, yes, 1 2 3 4 there are the digits. और ये डिजिट्स जो है, ये स्ट्रिंग जो है डिजिट से ही स्टार्ट हो रही है. इसका मतलब है इट शुड गिव द ट्रू वैल्यू. सो T2 डॉट इज डिजिट विल गिव यू ट्रू. बट इन द सेकेंड पार्ट T3 डॉट इज डिजिट, yes, there are some digits 1 2 3, but the string does not start with the digits. The string starts with the alphabets and followed by the digits. So in this case, is digit
method will turn to false. So over here, see. Okay, now third. T3 dot is a num. What is T3? T3 is AB123. So it's true because there are alphabets and digits as well. And hence is alnum will give you true value. So T3 dot is alnum is true. Okay, now T5 is lower. Yes, T5 is lower because it begins with the lowercase letter, though this has the space as well as the digits, but it begins from lowercase letters. That is why T5 is lower will give you the true output. So see here, this is the true output. Now T4, what is T4? T4 is ABC. So is this upper? So I have checked T4 dot is upper. Yes, this is upper because it begins from alphabet which is in cap. So capital letter से uppercase letter से start हुआ है. So it will give you true. But T3 dot is alpha. T3 is alpha. Yes, it is having alphabets, but along with alphabets there are some digits too. That is why it will give you false. एक्चुअली सर, हाँ बोलिए. सर अगर ए बी के बाद स्पेस होता तो ट्रू आता, ए बी के बाद स्पेस होता तो नहीं, तब भी फॉल्स आता. सर स्पेस भी फिर है नहीं, बिकॉज ए बी जो है इस अल्फाबेट दैट इज कैप टू, एंड उसके बाद आपने स्पेस दी तो वैसे ही एरर आ गई. लेकिन उसके बाद आपने न्यूमेरिक भी लगा दिया, तो ये अपर केस कहाँ रहा? ये अल्फाबेट पूरा कहाँ रहा? सी हियर, ये पूरा अल्फाबेट तो नहीं रहा. T3 पूरा अल्फाबेट तो नहीं रहा ना, बिकॉज इसके अंदर डिजिट्स भी आ गए. ओके सर, वैसे अल्फाबेट से स्टार्ट हुआ है, लेकिन बाद में जाके गड़बड़ हो गई. दैट इज व्हाई ये अल्फाबेट, अगर यहाँ से 1 2 3 आप हटा दें तो ये अल्फाबेट ट्रू हो जाएगा. ओके सर. एंड सर So take the screenshot of this and try it on your system also. हाँ बोलो. एंड सर अगर T5 में हम 4 5 6 को पहले डाल देते तो तब क्या होता सर? T5 में अगर हम T5 में 4 5 6 को पहले ले तो फॉल्स हो जाता, बिकॉज वो स्टार्ट ही 4 5 6 से हो रहा है. ओके तो सर, लोअर कहाँ से चलेगा? ठीक है ना. T5 अगर आप लेके चल रहे हो, T5 इज लोअर, ठीक है, इज लोअर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 4 5 6 को मैं पहले ले लूं, एबीसी को बाद में, तो वो पहले ही फॉल्स हो जाएगा. वो तो अल्फा न्यूमेरिक हो जाएगा ना. तो इज लोअर का तो मतलब ही नहीं बनता. यानी sir. इसमें जो है इट्स बिगनिंग मैटर्स. बिगनिंग ऑफ द वर्ड, बिगनिंग ऑफ द अल्फाबेट्स मैटर्स. यस सर. ओके सर. ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप ट्राई करिएगा आगे. स्प्लिट, इट इज वेरी यूजफुल मेथड, और हमें कई बार इसका यूज करना पड़ता है. पूरी स्ट्रिंग को आपने स्प्लिट करना है या लिस्ट को आपने स्प्लिट करना है, तो आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा. तो यहाँ पर क्या है इसका मेथड, कुछ इस तरीके से है. Split to return a list of strings. So and the big string is divided into small parts of different strings. So to return a list of strings after breaking the given string with a given separator. See here, if you apply split only with the string, so where the space character exists or encountered, space character is encountered, the string is broken from that place only. If we have not used any other parameter, लेकिन हमारे पास ये सॉल्यूशन है कि हम इसको डिफरेंट कैरेक्टर से भी स्प्लिट कर सकते हैं. सो द एक्सप्लेनेशन इज स्ट्रिंग स्प्लिट्स एट दिस स्पेसिफाइड सेपरेटर. अगर आपने सेपरेटर नहीं दिया तो स्पेस
is the separator. Space is the default separator. और कितने बार सेपरेट होना है, मैक्सिमम स्प्लिटर्स कितने होंगे वो भी आप मेंशन कर सकते हैं. ए नंबर टू स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू मैक्सिमम ऑफ प्रोवाइडेड नंबर ऑफ टाइम्स. कितने बार वो स्प्लिट होना है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं. इफ नॉट प्रोवाइडेड देन होल लेंथ इज टेकन. इफ नॉट प्रोवाइडेड देन देयर इज नो लिमिट. जितनी भी स्ट्रिंग होगी वो जहां जहां पर जो सेपरेटर मिलेगा वहां से वो ब्रेक करता चला जाएगा. तो पहले तो आप इसका मतलब समझ लीजिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे जाते हैं. तो मतलब ये है कि स्प्लिट जो है पूरे सेंटेंस को या पूरी स्ट्रिंग को या पूरी लिस्ट को ब्रेक करता है. और ब्रेक करने के लिए कहाँ से ब्रेक करना है, तो वो सेपरेटर आपको मेंशन करना होगा. एंड इफ यू डू नॉट मेंशन द सेपरेटर, स्पेस इज टेकन बाय डिफॉल्ट एज अ सेपरेटर. दूसरा पैरामीटर है कि मैक्सिमम लिमिट. मैक्सिमम लिमिट का मतलब ये है कि कितने आपको स्प्लिट चाहिए, कितने पार्ट में स्ट्रिंग को डिवाइड करना है. तो आप इसको भी दे सकते हैं. और अगर आप इसको नहीं दे सकते हैं तो वो पूरी स्ट्रिंग में जहां जहां पर जो सेपरेटर होगा वहां से वो उसको ब्रेक करेगा. होप द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर. क्लियर है? I'm asking. Yes, sir. मतलब ये नरेशन आपको क्लियर है ना कि कहाँ से Yes, हम sir. ये सेपरेटर हमें चूज करना पड़ेगा. अगर नहीं देते हैं सेपरेटर तो स्पेस इज अ सेपरेटर. और अगर आप मैक्सिमम लिमिट नहीं देते हैं तो पूरी स्ट्रिंग जो है डिवाइड होती जाएगी. तो ये चीजें हमें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि किस तरीके से हमें स्प्लिट मेथड को यूज करना है. एंड सी हियर, दिस इज द स्ट्रिंग. This string is to be split. Fine. So now see the example. T is a string. We are the world. Okay. Now हम इसको split कर रहे हैं. T dot split. Since there is no separator at all, कोई भी सेपरेटर यहाँ पर हमने नहीं लगाया है, तो स्पेस इज द सेपरेटर. तो ये जो है डिफरेंट यानी सब स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सो जो आउटपुट होगा वो होगा वी आर द वर्ड, बट वी इन द कोर्स, आर इन द सेपरेट कोर्स, दी इन द सेपरेट कोर्स एंड वर्ड इन द सेपरेट कोर्स. सो सी हियर, दिस इज आउटपुट. वी आर द वर्ड. राइट. सो यहां पर हमने कोई सेपरेटर नहीं दिया है. इन सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव टेकन द सेपरेटर एज ई. तो आप ये देखिएगा कि जहां जहां पर ई होगा वहां से वो स्प्लिट होगा. चलो चेक करते हैं. वी, ई इज द सेपरेटर, तो यहां से सेपरेट हो गया. सो डब्ल्यू इज देयर. डब्ल्यू कोई एक आइटम बन गया. राइट. देन उसके बाद जो है वी के बाद एक स्पेस है, तो जो आपका जो वर्ड बनेगा स्पेस एंड ए आर, बिकॉज आगे ई है तो यहां से स्प्लिट हो गया. अगेन ई के बाद फिर स्पेस है, तो स्पेस ई के बाद स्पेस है, सो टी एच आपका आ गया. टी एच के बाद अगेन ई आ रहा है, तो ई के बाद स्पेस आ रहा है, तो यहां से स्प्लिट होगा. तो स्पेस से लेकर के वर्ड तक पूरा एक सब स्ट्रिंग हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड जो सेकंड लाइन है? Yes, sir. सबकी समझ में आ गया? Yes. ओके, आगे चलते हैं. अब जो थर्ड स्टेटमेंट है वहां पर स्प्लिटर क्या है? ई एंड स्पेस. यानी जहां जहां पर ई एंड स्पेस होगा वहां से सेपरेट होगा. सो वी के बाद सेपरेट हो जाएगा. ई एंड स्पेस, तो ई एंड स्पेस यहां से ये सेपरेट होगा. तो ये आपका बन जाएगा डब्ल्यू
एंड स्पेस है तो स्पेस भी हट जाएगा और अगला क्या होगा, ए आर, दिस इज ए आर सब स्ट्रिंग। देन ई स्पेस, तो अगेन फिर यहां से ये हट जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा टी एच, again e space, so this is e space. Now world will be the next substring, so world will be the next substring. Hope this is clear, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. फोर्थ स्टेटमेंट चेक करिए, फोर्थ स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट में देखिए आर कहाँ पर आ रहा है, सो वी तो है ही अपने पास, वी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जहां आर आएगा वहां से स्प्लिट हो जाएगा, तो यहां पर आर आया, सो डब्ल्यू ई एंड ए एक सब स्ट्रिंग हो गया, एंड आर से ये ब्रेक हुआ, देन ई टी एच ई डब्ल्यू ओ ये एक हो गया, देन आर आ गया फिर ब्रेक हो गया, तो एल डी थर्ड हो गया। तो देखिए इसका आउटपुट डब्ल्यू ए, और उसके बाद आर आया तो यहां से ब्रेक हो गया, ये आर में जब आर आया तो ई टी एच ई डब्ल्यू ओ तक पूरा स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग हो गया, देन डब्ल्यू ओ के बाद आर आ रहा है तो वहां से ब्रेक हो गया, तो एल डी हो गया, तो यू विल हैव 3 सब स्ट्रिंग्स हियर। Okay, so now come to R, AR. So R के पहले R के बाद जो यहां से वो डिवाइड होगा, तो V the word, यानी R से स्प्लिट हो गया, तो V the word, तो R से पहले भी स्पेस है, so R से पहले का स्पेस ये रहा, R के बाद का स्पेस रहा, तो V एक सब स्ट्रिंग हुआ, the word दूसरा सब स्ट्रिंग हुआ। ओके, मैक्सिमम जो टाइम है वो आपने दे 0, कि आपको इस मैक्सिमम स्प्लिट्स 0 चाहिए, तो सिंपल सा है, आ जाएगा वी आर द वर्ड। फिर आपका सेपरेटर आया और उसने ये कहा कि 2 मुझे केवल स्प्लिटर चाहिए, तो जहां जहां पर स्पेस है तो 1 एक तो ये हो गया और एक आपका ये हो गया, तो यहां से स्प्लिट हो जाएगा, केवल हमें 2 चाहिए से, तो दी वर्ड एज इट इज रहेगा। वी वांटेड 2 स्प्लिटर्स, अगर हम 3 करते तो सारे आ जाते, तो यहां से भी दी वर्ड आ जाता, बिकॉज 3 स्पेस अगर हम लेते हैं 3 स्प्लिटर से ही तो आते हैं। वी सेपरेटर कितने आते हैं, 3 आते हैं, 1 2 3, तो स्प्लिटर कितने हो जाएंगे, 4। राइट, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे एक बार ट्राई कर लेने चाहिए। आपने पहले नहीं किया होगा, फंक्शन जरूर देखा होगा, लेकिन डिफरेंट जो पैरामीटर्स एंड डिफरेंट स्टाइल में करेक्टर जो सेपरेटर है वो लेना, वो आपने नहीं किया होगा। दैट इज वाई दिस इज मैंडेटरी टू ट्राई दिस प्रोग्राम ऑन ए सिस्टम। ओके, सो आज के लिए हम केवल इतना ही लेके चल रहे हैं, अगला भी है बट अगला हम अभी नहीं ले रहे हैं। अगला क्या है, मेथड पार्टीशन। तो पार्टीशन हम डिस्कस करेंगे कल या परसों जब भी पीरियड होगा। ओके, सो फ्रॉम इंडेक्स 24 से वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट डिस्कशन। ओके, Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. okay, so stop, I'm stopping the presentation. So only चलिए, Thank you, sir.
वेलकम। जय हिंद सर। जय हिंद। Thank you, Thank sir. you, sir. ओके बेटा। Thank you, sir. थैंक यू वेलकम। सर। Thank you, Thank you, sir. sir. थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू।